The question is given x cube plus y cube plus 3xyz is equals to 2007 into 3. So we are rewriting this something like this. We know the basic formula. We can factorize this cubic equation. X cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. But here it is plus 3xyz. So I'm rewriting this as this formula, right? This question as x cube plus y cube minus 1 cube, right? Or plus of minus 1 cube plus this 3xy minus z, right? And this minus I'm rewriting as minus minus, that will be plus. So this is x, this is y, this is z. So my formula will be xyz, x plus y plus z into x square plus y square plus 1 plus x plus y minus xy is equals to, this is equals to this, we have taken minus 1 there. We have to subtract 1 from this side. This is 6020. Is it okay to everyone? Note down. Now, second thing, what you have to do, you have to find the factors of 6020 carefully. You have to find the factors of 6020. So from that, we are in the position to say this. This is x plus y plus z means minus 1 into x square plus y square plus 1 plus x plus y minus xy is equals to 6020 is 2 square into 5 into 7 into 43, right? 2 factors, and these are 4 factors, right? Note down up to this. Okay, now look, then we can say from this position we can proceed as, right, this is x plus y minus 1, and this we can write the second one, we can write x plus y minus 1 the whole square plus 3x plus 3y minus 3xy. So we can say that this quantity is less than this one, right? So we have how many options we have? X minus this is always less than the quantity, this one. And what we are getting, if x plus y minus 1, this value could be from this, how many factors we can take? This is 2 or 5 or 2 and 7, 14, right? And we can say 7 or 5, that will be 35, right? And 5 into 4 will be 20. 5 into 4 will be 20 or 35, right? What we are saying, see, we have 2 factors और दोनों integers हैं, तो 2 integer का multiplication हमारे पास आना चाहिए, right? तो 2 integer का multiplication हमारे पास होने चाहिए, तो possible क्या हो सकता है, क्योंकि x and y दोनों integers हैं, right? So this quantity is less than this complete quantity, right? So what are the options we have for x plus y minus 1? So we can go for 2 or this 4 or only 5 is there or only 7 is there, right? Only 7 is there, or maybe 2 into 5, 10 would be there, or 14 will be there, और 5 into 4 20 would be there. तो ये इतने ऑप्शंस मेरे पास हैं, राइट? 28 मिस किया। अभी करता हूँ बेटा, बता रहा हूँ, सब कुछ कंप्लीट करने दो, उसके बाद डिस्कस करना ना।
पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, पहले यहाँ तक आप लोग नोट करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ ना। सर वो सेकंड स्टेप में आपने क्या किया? कौन सा बेटा? सर वो एक ब्लू मार्कर से शुरुआत की थी वहां से। एक फिर से करता हूँ इसे, that will be easier to understand. Look, यस सर। this we have given x plus y plus 1 factor, and second factor is this one, the multiplication of two factor. In this factor we can say, like, we can rewrite this as x plus y minus 1 the whole square plus 3x plus 3y minus 3xy. Is it okay? राइट सर। Right? Then we are saying ki, like, these three are divisible by these three are divisible by 3, right? Okay. When we are dividing this by 3, right? So what the remainder we are getting for x minus y plus 1, right? What the remainder we are getting for x plus y minus 1, right? So we can say that ki, like, if this quantity is multiplication of two quantity, ki this one of the quantity is this one and other quantity is this one, right? One quantity is x plus y minus 1 and other quantity is this one. So this having the square and some numbers are adding in there. So we are saying ki this number is always less than this one. Okay, yes sir. Got it. Right? So what are the proposition we can say, like x plus y minus 1, right? X plus y minus 1 into this quantity is equals to 6020. Like, when we are dividing both the side by 3, this is called mod 3, or divided by 3, both the side, right? When we are dividing this by 3, obviously this is divided by 3, this is divided by 3, this is divided by 3. So this quantity and this quantity would be there, right? Yep. Okay. So x plus y minus 1 whole cube. And when we divide this by 3, what you are getting? Sir, completely divisible नहीं है वो. What the number is coming? Divide करने पर remainder क्या बचेगा? जल्दी से निकालो तो. हाँ, एक सेकंड. 2. Okay. Means x plus y minus 1 जो होगा वो remainder 2 देगा when divided by 3. x plus y minus 1 जो होगा वो remainder 2 देगा when divided by 3. Right? ये confirm हुआ फिर? हाँ सर. अगर 2 मिल रहा है तो दोनों साइड होना चाहिए. Now everyone ध्यान से सुनना फिर. तो प्लीज म्यूट रखेंगे सभी लोग ना. ओके सर. आसान पड़ेगा ना. Then अब अगर mod 2 मतलब डिवाइड करने के बाद 2 आने हैं तो x प्लस वाई माइनस 1 के लिए क्या क्या ऑप्शन होंगे? या तो वो 2 होगा, या नेक्स्ट नंबर मेरा क्या हो सकता है कि 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 हो तो वो 5 हो सकता है. नेक्स्ट नंबर क्या होगा तो वो 14 हो सकता है, फिर 20 हो सकता है, 35 हो सकता है. तो जो आपके ऑप्शन थे, तो आपने बोला कि सर 24, ऑब्वियसली बात है नहीं पॉसिबल. 28 नॉट पॉसिबल, क्योंकि मुझे ये मिला है, ये लैंग्वेज होता है mod 3. इस लैंग्वेज को बोलते हैं mod 3. mod 3 का मतलब होता है when divided by 3, राइट? when divided by 3 तो रिमाइंडर मेरे क्या बचने चाहिए, राइट? तो रिमाइंडर बचने चाहिए 2. तो जिससे मैंने कहा कि ध्यान दो 5 अगर मैं लिख रहा हूं तो उसमें भी मैं अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा. 14 भी लिख रहा हूं तो रिमाइंडर मेरा 2 बचेगा. 20 के लिए भी रिमाइंडर 2 बचेगा. एंड एवरी टाइम वी आर गेटिंग रिमाइंडर 2 इन दीज केसेस. इसके अलावा हमारे पास कोई केस नहीं है, राइट? अब थोड़ा सा इंस्पेक्शन यहाँ पर करना पड़ेगा कि अगर x प्लस वाई माइनस 1 मैंने 2 ले लिया, राइट? तो बची हुई क्वांटिटी जो मेरे पास है
जो सेकंड वाली क्वांटिटी है वहां पर हमारे पास वैल्यूज जो पॉसिबिलिटी है उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, राइट ना। तो ये क्वांटिटी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई की क्वांटिटी मेरे पास उसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए 3010, 6020 था ना, 3010। तो ऑब्वियस ही बात है एक्स और वाई के इतने छोटे इंटीजर्स पर यहाँ पहुंच पाना तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, राइट 5 के लिए भी नहीं। तो वी लाइक इफ यू आर ट्राइंग दिस फॉर 20, राइट। देखो तो एक बार 20 अगर मैंने पुट किए हैं, राइट, तो व्हाट आर द पॉसिबल केसेस फॉर यू आर गेटिंग दिस एज 20 पुट करने पर मेरे को दूसरा नंबर क्या आएगा इसमें 6020 को आपने 20 से डिवाइड किया है, ये चला गया 301, राइट। ये 301 आना चाहिए 20 के लिए। सो वी कैन से 20 के लिए हमारे पास अगर x प्लस वाई 1 है, एक वैल्यूज को अगर मैंने यहाँ पुट किया देन विल गेट द सॉल्यूशन फॉर दिस। जल्दी से इन दोनों के लिए कोई सॉल्यूशन मेरे को निकाल के दे सकते हो तो प्लीज दे दो जल्दी से। फॉर्मूला भी पीछे मैंने यूज किया है। तो एक बार पीछे वाले पेज पे। हाँ बेटा, आप इसे भी यूज कर सकते हो, ये वाले फॉर्मूले को इसे यूज करके आपका सॉल्यूशन आना और आसान हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन दिखाने के लिए ही ये रखा था आप लोगों के लिए। Done, Sir? everyone? So can you explain the second step once again? This one, yes beta. See, what we are doing here, we can write this x plus y, the factorization is there, right? In this factorization I am rewriting this as x plus y minus 1 the whole square plus 3 times of this, right? If we are writing 3 times of this, so we are saying if we will divide this by 3, so these 3 quantity must be divided by 3 and this quantity is not divided by 3. But when we'll multiply x plus y this with x plus y minus 1 whole cube and this quantity, so what is the remainder when we are dividing by 3? Because these 3 are divided by 3. So if you divide this by 3, so you'll get the number 8 and just 2 cube. So we are getting कि इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा, राइट। ये करने से मेरे को फायदा क्या हो गया कि मेरे बहुत सारे जो ऑप्शंस आ रहे थे यहाँ पर, ये जो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे थे उस ऑप्शन को हमने रिड्यूस कर लिया कि हर एक फैक्टर जो x प्लस वाई माइनस 1 का होगा वो 2 के साथ ही रहेगा, राइट। तब उससे मैंने ये डिड्यूस किया यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी x प्लस वाई के लिए, तो हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स यहाँ लगाए, राइट। उसमें भी हमने ये देखा ये पॉसिबिलिटी हमारे पास आई कि लाइक बहुत सारे नंबर्स जो हमारे पास आ रहे हैं उन नंबर्स पर वर्किंग के लिए क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं। तो नाउ अब हम लोग यहाँ पर रुके हैं कि x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू अगर 20 है एंड ये क्वांटिटी मेरी 301 है, तो x और y इंटीजर जो आएंगे उसकी क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, राइट। एवरीवन इज ट्राइंग फॉर दैट। देखता हूँ। Yes, sir. It's a beautiful arrangement. आज मेरे को सर्च पढ़ाना है, जल्दी से ये डिस्कस कर लूं क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने दिया था, इसलिए फ्रॉम टुडे यू विल स्टार्ट द थिंग्स क्या क्या होने हैं, कैसे जाने हैं। x इज इक्वल टू आप लोग ये ट्राई करके देखेंगे, x और y दोनों सिमेट्रिक है। यहाँ पर x की वैल्यू, ये अब आप लोगों के लिए एक और वर्क मैं दे रहा हूँ, x की वैल्यू 18, y की वैल्यू 3 और वाइस वर्सा, ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं,
राइट। ये आपका वर्क रहेगा। नेक्स्ट का आप करके मुझे ये बताएंगे। नाउ नेक्स्ट, n is equals to k plus k square minus 1 under root। एक ये भी क्वेश्चन मैंने सभी को दिया था, याद है? कितने लोगों का हो गया ये? नहीं है सर, वो लैम्बडा है। k को लैम्डा आप रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। राइट, ये क्वेश्चन था। कितने लोगों का हो गया प्लीज? सर मेरा हो गया। वेरी गुड। भेजो बेटा, क्या किया आपने? एवरीवन, इफ यू हैव डन प्लीज सेंड मी। वेरी गुड। 3-4 लोगों के इसके आंसर आ चुके हैं, राइट। तो मेरे को मैसेज आ चुका है व्हाट्सएप पे, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा जो लास्ट क्वेश्चन था उसको सभी लोग ध्यान से देखेंगे। वेरी गुड बेटा। यहाँ पर ध्यान दो, इस क्वेश्चन पे मेरे पास जो गिवन है ये लैम्डा की जो भी आपने लिया, इस n को मैं उस तरफ ले जाऊं, राइट। सो दिस इज k और लैम्डा k square minus 1 to the power 1/3 plus the second one k minus under root of k square minus 1 to the power 1/3 plus 1 minus n is equal to 0. Let us suppose this is A, this is B, this is C. If A plus B plus C is equal to 0, then A cube plus B cube plus C cube is equal to 3ABC. Right? From this we will get A cube plus B cube. So this is 2K plus C cube right is equal to 3ABC when multiply this k square minus k square plus 1 into 1 minus n. Is it okay? यहाँ तक नोट करेंगे सभी लोग प्लीज। राइट, खत्म हो चुका है क्वेश्चन, आपका आंसर आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। पिछला वाला क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में एक था, और दिस वाज द सिंपल वन, मतलब सिंपलेस्ट वन। नोट इट डाउन। So this you are getting 2k plus 1 minus 3n. 3n cancel out. Right. So last is n cube minus 3n square is equal to 2k minus 2. So obviously this is equals to 2k minus 2. 2k is an integer. So obviously you are getting this as integers.
Okay, everyone. Okay, everyone. Yes, sir. आगे बढ़ सकते हैं ना। ये सिंपल था। पिछले वाले क्वेश्चन को अभी आपको करना है। वो क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार हम लोग पूरे सेशन में करेंगे। उसके वेरिएशन भी मैं आपको भेजूंगा। बहुत सारे वेरिएशन भी होंगे उसके, राइट? टू बी केयरफुल। हाँ, नाउ ध्यान से देखना कि नाउ वी आर स्टार्टिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो के लिए मैंने बोला था। उसे आने के लिए थोड़े से आपको सर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। सर्ट्स को मिला के मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो और सर्ट्स दोनों को साथ में रखूंगा, राइट? तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी। बहुत सारे डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होते हैं। मैंने आपको बुकलेट एक भेजा हुआ है, राइट? वही आपका नेक्स्ट असाइनमेंट रहेगा, जिसके होमवर्क जो है आपके रहेंगे, राइट? सो आई एम स्टार्टिंग सर्ट्स। इंपॉर्टेंट है कि आपको टर्मिनोलॉजी याद रहे एंड टर्मिनोलॉजी को आप यूज करें, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सामने सबसे बड़ी बात यही रहेगी, राइट? तो एवरीवन नाउ स्टार्ट, राइट? एक चीज का ख्याल रखना, सर्ट्स डेफिनेशन। लेट ए बी अ rational number and n be a positive integer such that a to the power n is a irrational, then is called a search of order n. This is given. Also, we can write a n as a to the power 1 by n, right? This is the definition of search. A be a rational number, n be a positive integer, and this must be irrational number. ये 3 की पॉइंट्स हैं जिस पर आपको वर्क करने हैं, राइट? छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं, बट आईटी में एक क्वेश्चन इससे आई थी, कई स्टूडेंट ने गलत किए थे। दैट्स द रीजन आई एम गिविंग यू। इसलिए इतने बेसिक से जाना कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है। Types of search. First, quadratic search. If order is 2, root 7, root 8, root 17, right? These are quadratic searches. Cubic search, order is 3. These are called cubic search. Third, biquadratic. When power is 1 by 4. Anything in this form. Biquadratic.
right? Fourth, pure सर्ट्स. थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि जस्ट टर्मिनोलॉजी है, यू मस्ट नो, राइट? प्योर सर्ट्स. If only सर्ट्स आर गिवन लाइक 5 का अंडर रूट, 7 का पावर 1 by 5, 8 का पावर 1 by 13, 17 का पावर 1 by 6, केवल एक टर्म गिवन है इस तरह के, तो दिस इज कॉल्ड प्योर सर्ट्स, राइट? फिफ्थ, मिक्स्ड. मिक्स से और क्लियर होगा कि एग्जैक्टली प्योर क्या होता है. 7 रूट 2, 2 नंबर आ गए मेरे पास, एक 7 भी आ गया एंड इसको मल्टीप्लीकेशन रूट 2, 8 इंटू रूट 5, 6 इंटू रूट क्यूब रूट ऑफ 3, 9 इंटू 4th डिग्री ऑफ 2 एंड सो ऑन, राइट? 6. एक मिनट, ये पुराने पेज भी देख लो, अगर नोट नहीं किए होगे तो डू इट फास्ट. Sir, what is written in first quadratic surds? Quadratic surd order is 2. Okay. Done. Yes, sir. Yes, sir. Go for the second page. जल्दी से इसे भी नोट कर लें प्लीज. Done, sir. Done. Done, sir. Sixth is compound surds. Compound, the expression consists of sum or difference of two or more than simple surds or a rational or a surds. Means 3 plus root 2, root 5 plus cube root of 7 and anything in this form, right? This is called compound surds, right? Binomial surds. Binomial means only two terms. Root 2 plus 7 ka power 1 by 3. Only two terms are given, then these are known as binomial. ये सब टर्मिनोलॉजी याद रखना, बहुत अधिक ये सब चीजें बार बार आपके सामने आएंगे, राइट? आगे बढ़. बायनोमियल सर्ड का जो एग्जांपल दिया आपने और कंपाउंड सर्ड का जो सेकंड एग्जांपल है, हाँ, तो वो भी बायनोमियल में ही आएगा ना? हाँ, कंपाउंड में ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं, रह सकते हैं. बायनोमियल में केवल 2 ही होंगे, राइट? यहाँ पर मैं अगर कंपाउंड है तो मैं और कर दिया, 6 कर दिया, और भी नंबर प्लस माइनस कर सकता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड, राइट? लेकिन उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता. बायनोमियल में रिस्ट्रिक्शन होता है 2 ही टर्म आने हैं, जैसे कि ये सब लाइक काफी आगे यूज होने हैं ना. 8, ट्राइनोमियल सर्ट्स. Trinomial. Trinomial means 3 terms, like root 7 plus root 5 minus root 3. Right? इस तरह के जो terms होंगे ना, these are called trinomial surds. Means compound surds containing 3 terms, right? And polynomial surds. Polynomial surds. A compound surds consisting of more than 2 terms. Binomial से ऊपर वाले trinomial भी polynomial में आता है. 2 root 3 plus 5 root 2 plus 7 cube root of 3 and so on. This is called polynomial, right? Next, comparison of 2 surds. Obviously, अगर सेम बेस है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. क्या क्या बातें होंगी अगर बेस सेम होगा?
different base, order same, and third हो सकता है both different, दोनों different, like 7 to the power 1 by 3, 7 to the power 1 by 10. Obviously we know that 7 to the power 1 by 3 greater than, same base में order हमारे different है, right? Second, 7 to the power 1 by 3, 5 to the power 1 by 3. Obviously we know that कौन सा बड़ा होगा, right? हाँ, ये ख्याल रखना कि 0 से 1 में ये इनइक्वालिटी साइन चेंज होती जाती है क्योंकि नीचे का नंबर बड़ा होते जाता है, राइट? बोथ डिफरेंट के लिए व्हाट यू हैव टू डू, लाइक 3 to the power 1 by 4, 2 to the power 1 by 3, ये दो मैंने दिया कि लाइक यू हैव टू कंपेयर. सो व्हाट यू हैव टू डू, सी द ऑर्डर, order 4, order 3, LCM of 4 and 3. LCM of 4 and 3 is 12, right? अब ये 12 जो हमारे पास है, ये दोनों में मैंने पावर दे दिया. This is 3 to the power 3, 2 to the power 4. This is 27, this is 60. So obviously this is less, so less. Is it okay? हाँ सर. सर एक बार लास्ट पेज पे जाना. Note down please. ये जो देखने में इतने सिंपल लग रहे हैं, क्वेश्चन आने पर यही बहुत टफ होने लगते हैं, तो केयरफुल रहना सभी लोग. Sir, sir, in case of same base, how can we define which is the greatest? सेम ये वाले में बेटा हाँ. दोनों तरफ देखो, ध्यान से देखो, जितना पावर जाते जाएगा तो 7 to the power 1 by 3, 1 by 3 केवल इसमें पावर गया है, इसमें 1 by 10 गया है, तो नंबर को इसने बहुत छोटा कर दिया होगा. अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है तो जितना पावर नीचे 1 by 10, 1 by 100 में करता जाऊंगा तो ये वैल्यूज और छोटी होती जाएगी. Okay, sir. राइट, बट मैंने ये भी बोला साथ ही साथ कि इफ द वैल्यू इज लाइंग बिटवीन 0 to 1, अगर यहाँ पर मैं 1 by 2 to the power 1 by 3 और 1 by 2 to the power 1 by 10 कर रहा हूँ तो ये लॉजिक डिफरेंट हो जाएगी, जस्ट अल्टर कर जाएगा ये कहानी पूरा ना, क्योंकि नीचे के पावर बड़े हो रहे हैं तो 1 अपॉन नीचे का पावर बड़ा होगा तो अल्टीमेटली नंबर छोटा होता जाएगा. Yes, sir. राइट, सो दिस इज फॉर सेम बेस फर्स्ट. सेकंड मैंने कहा कि डिफरेंट बेस अगर हो और ऑर्डर अगर सेम हो तो 1 by 3, 1 by 5 है, तो मैं तो यहाँ देख के बता सकता हूँ 7 greater than 5 है तो कुछ भी पावर मैं दे रहा हूँ पॉजिटिव पावर तो 100% 7 to the power 1 by 3 जो होगा वो 5 to the power 1 by 3 से बड़ा होना चाहिए. राइट, अब यहाँ पर बहुत डिफरेंट के लिए जब यहाँ बात हो रही है तब के लिए मैंने क्या लॉजिक दिया है कि व्हाट यू हैव टू डू, अगर ऐसा ही कुछ फंस रहा है तो एक तरीका हमेशा ये हो सकता है कि मैंने दोनों का ऑर्डर देखा, उसका एलसीएम लिया, एलसीएम जो भी था उसको दोनों तरफ मैंने पावर में दे दिया, सो वी आर गेटिंग 2 नंबर्स. तो नंबर जो रैशनल फॉर्म में या सिंपल फॉर्म में आ गए उस नंबर को देख के मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब कौन बड़ा होना चाहिए. Is it okay, Manas? Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Now, अब ये पूरे कहानी पर हमारे पास बहुत सारे वैरायटी हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं. लाइक अभी तो मैं बहुत अधिक इस पे नहीं, बट चलो एक छोटा सा क्वेश्चन का रेंज करवा देता हूँ. लाइक यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ टू यूज दिस, राइट, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे यूज होने हैं. Like in every case you have to see which one is greater, right?
Sir, done. Very good बेटा. Sir, done. Very good. लिख दो, chat में लिख दो. It's okay ना? So what is the difference between compound surds and polynomial surds? So what was the second question? मैंने रब कर दिया बेटा. Anyone can help root me? 15 minus root 14 and root 16 minus root 15. Root 15 minus root 14, root 16 minus root 15. Right? Okay, sir. Thank you. Okay. Done now. Multiply this by root 15 plus root 14, 1 by root 15 plus root 14, and 1 upon this will be root 16 plus root 15, right? Since this number is greater than this one, ये root 16 plus root 15 is greater than root 15 plus root 14. So this number greater than this one, to divide होने पर this will be less than. So this is less than, so this will be less than. Okay. Sir, नहीं समझा. Yes, sir. Yeah. Can you explain again? Yes, beta. See, this number is given. So multiplying with root 15 minus root 14, right? Root 15 minus root 14, multiplying with root 15 plus root 14 in the numerator and denominator. Now, same will do with this, with root 16 plus root 15, multiplication and division. Is it okay to everyone? Now, this is a minus b, this is a plus b. So a minus b into a plus b is a square minus b square. So this will be 15 minus 14, it's a 1 upon under root 15 plus under root of 14. And in this it is 1 upon under root 16 plus under root of 15, right? We know that under root of 16 plus under root of 15, this quantity is greater than this one. अगर मान लो एक क्वांटिटी है ये 10 greater than है 2 से, 1 by 10 करूंगा और 1 by 2 करूंगा तो 1 by 10 will be less than this. In the same way, in the same manner, I am saying कि ये नीचे की quantity is greater. So अगर ये नीचे की quantity greater है तो 1 को divide करने पर ये तो और less हो जाएगी मेरे पास. Right? तो अगर ये true है तो ये भी true होगा और ये true है तो ये भी true होगा. जो मुझे आंसर चाहिए वो आंसर भी ट्रू होगा, राइट? Yes, sir. ओके. नाउ सो अब यहाँ के लॉजिक को इफ आई एम सेइंग कि यहाँ से आगे बढ़ने हैं तो सर्ट्स के ऑपरेशन हाउ विल गो विद द ऑपरेशन ऑन सर्ट्स, राइट? प्लस माइनस सर्ट्स के अगर करने हैं लाइक रूट 2 प्लस रूट 3 तो ये रूट 2 रूट 3 ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होते, राइट? दो सर्ट्स को अगर आप इस तरह से ऐड करना चाह रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं होता है, राइट? आप इस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट में नहीं जा सकते हो, ऑब्वियसली यू नो दिस. लेकिन अगर 5 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 माइनस रूट 2 अगर ये है तो रूट 2 एक्चुअल में होता क्या है कि रूट 2 कॉमन आने के बाद 5 प्लस 3 माइनस 1 हो जाते हैं, देन यू आर गेटिंग 7 रूट 2, राइट? Yes. अगर मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ फिर से वही वाली बात हुई, 7 power 3 and 9 power 3.
अगर ऑर्डर दोनों के सेम है तो मैं सीधा का सीधा 3 करके 9 into 7 63 कर लूंगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं है 7 9 का क्यूब होगा, तो ऑब्वियस ही बात है इसके ऑर्डर सेम करने के लिए अगर मैं यहाँ पावर दे रहा हूँ तो यहाँ भी पावर देना पड़ेगा। ये सब लॉजिकल, यू नो दिस, बट फिर भी एक बार स्टार्ट करने पर भी जरूरत हो जाती है, राइट। पावर्स को मेरे को देने पड़ते हैं अगर मुझे कुछ और नंबर्स को दोनों को सेम बेस में करना है, राइट। एक और लॉजिकल चीज आती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये गलत भी होता है कई बार और बुक्स में भी गलत लिख के रखता है। a to the power n into b to the power n की वैल्यू को सीधा हम लोग लिख देते हैं, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता। ये ट्रू होगा एटलीस्ट 1 पॉजिटिव, या कम से कम एक को पॉजिटिव होना चाहिए, या ए बी में से दोनों को पॉजिटिव होना चाहिए। अगर दोनों पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड, अगर एक भी पॉजिटिव चलेगा, दोनों नेगेटिव के लिए ये ट्रू नहीं होता, ये गलत हो जाते हैं। हाँ, ऑलवेज ट्रू ये नहीं है स्टेटमेंट, राइट। बट यूजुअली सर्ट्स में अभी जो आप काम करते हो अलजेब्रिक के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, डिवीजन में भी यही काम चलता है। बट ये ख्याल रखना आगे चल के, क्योंकि हम लोगों को ये गलत करवा दिया जाएगा, इस पे भी बेस आईआईटी का क्वेश्चन है। जो ये जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ये इंटेंशनली पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये मालूम है कि आगे जाके आईआईटी के जब क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, तो वहां पर जाके आपकी गलतियां हो रही होगी, वो मैं नहीं कर सकता। एक छोटी सी बात पूछता हूँ, एवरीवन केयरफुल, अंडर रूट ऑफ पाई इज सर्ट्स और नॉट? यस नो में चैट में केवल जवाब चाहिए। अंडर रूट पाई इज अ सर्ट्स और नॉट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस नो की एकदम लगातार आ चुके हैं, वेरी गुड। आई गेस मेरे को जो दिखाई दे रहे हैं, एक मिनट चैट में मैं रीड करता हूँ ना कैसे कैसे आया हुआ है फर्स्ट से ना, यस नो का कैसा ये है, क्योंकि ये मैंने प्राइवेट किया हुआ है इसलिए सभी को नहीं दिख रहा होगा, तो मैं रीड करता हूँ ना, देखना, काउंट इट ना, यस नो 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 नो, यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, यस 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 यस, यस नो, यस नो, यस नो, ना ना ना, ये तो किसी का ना 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 हो गया, गाना कोई लिख रहा है, राइट। तो नो और यस करीब करीब सब जगह पर सेम है। शुभम यस, अक्सा नो, तेस नो, राइट। ये सर्ट्स नहीं है, दिस इज नॉट अ सर्ट्स, क्योंकि सर्ट्स के डेफिनेशन में ही मैंने शुरुआत में ही ये लिखवाया था, एंड ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आईटी में, उसने नंबर देके पूछा, उसने आंसर में दे दिया कि आंसर मस्ट बी सर्ट्स। अब आंसर मस्ट बी सर्ट्स में एक ऑप्शन ऐसा दे दिया हुआ था, एंड ये सर्ट्स नहीं है मेरा, क्योंकि ये नंबर जो होना चाहिए वो रैशनल होना चाहिए था, पाई इरैशनल नंबर होता है। अब कहाँ ले जाके आपको चेक करेगा ना, हमें नहीं मालूम, तो इसलिए हमारी जो रेंज होनी चाहिए वो बेस से लेके पूरे ऊपर तक, तो ईच एंड एवरीथिंग वी मस्ट नो, राइट। कि वो गड़बड़ वाली या किस्मत के भरोसे तो अपन जाना ही नहीं है भाई, अपना रास्ता हमें ही लिखना है और अच्छे से लिखना है ना। तो ये पूरे कहानी जो हुई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको जाएगा वो जाएगा रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। सभी नंबर का रैशनलाइजेशन होता है, यहाँ सर्ट्स की बात हो रही है, राइट। सर्ट्स के रैशनलाइजेशन में फर्स्ट मैं 4 नंबर जो आपको यूजुअली आएंगे शुरू वाले वो, लेकिन यही नंबर नहीं रहेंगे, इसके अलावा भी नंबर रहेंगे। लास्ट क्लास में भी मैंने ये दिखाया था, बट मैंने ये डिसाइड किया कि इसे और अच्छे से बेसिक के साथ में आपको दिखाया जाए तो आपके बेनिफिट देगा, एंड इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। a माइनस रूट बी, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है, इसका फैक्टर है रूट a प्लस रूट बी, इसका फैक्टर है a प्लस रूट बी, इसका फैक्टर है रूट a माइनस रूट बी। मतलब कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि वो रैशनलाइज हो जाए, ये फैक्टर्स हैं। ये फर्स्ट लिस्ट है जो आपके पास होनी चाहिए, राइट। यहीं पर जब सेकंड लिस्ट की बात चलती है, अगर यहाँ पर रूट a प्लस रूट बी प्लस रूट c हो जाए,
मजेदार बात क्या है कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन से स्टार्ट कर लो, आपको रिजल्ट तो अच्छा ही आना है, बट बी इंटेलिजेंट, आप नंबर्स को देखते हुए करना। मान लो √2 + √3 + √5 है, तो कोशिश मतलब यहाँ पर किसी में भी माइनस करोगे तो वो रैशनलाइज होगा, बट थोड़ा इंटेलिजेंट बनते हुए काम करना। यहाँ पर अगर मुझे वर्क करना है तो √2 + √3 - √5 के साथ मैं करूंगा, तो मेरे को रैशनलाइज करना हमेशा सिंपल होगा, राइट। थर्ड, a⁻⁴ + b⁻⁴ अगर ये फैक्टर है या a⁻⁴ - b⁻⁴, तो इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर थोड़े से डिफर कर जाते हैं, थोड़े अलग हो जाते हैं, दोनों वाइस वर्सा है। a⁻⁴ + b⁻⁴ - ab⁴ Similarly, for second one, a⁻⁴ b⁻⁴ plus ab⁻⁴, right? a⁻⁴ b⁻⁴ plus ab⁻⁴, ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन में आपको ये आंसर दे देगा a plus b, ये वाला आंसर दे देगा a minus b, right? Please note down. Find under root of a plus root b. Find under root of a plus root b. मैं एक रेडीमेड फॉर्मूला आपको दे रहा हूं. This will be under root of a plus under root of a square minus b by 2 plus under root of a minus under root of a square minus b upon 2. कोई भी नंबर को अगर मुझे इस तरह से दो रैशनल फैक्टर्स में लिखने हैं, लाइक 8 plus 2√15 का अंडर रूट मैंने ये दिया, तो फर्स्ट व्हाट आई हैव टू डू कि इसे कुछ उस फॉर्म में लिखने के लिए आई एम राइटिंग दिस एज अंडर रूट ऑफ 8 plus अंडर रूट ऑफ 60. ये 2 1/2 पावर ले जाने के लिए ये अंदर जाएगा तो 4 होगा, राइट राइट, तो 4 होगा, तो दिस विल बी 60. तो a की वैल्यू मेरे पास है 8 और b की वैल्यू मेरे पास है 60. नाउ आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला. तो a की वैल्यू मैंने 8 अप्लाई किया, b की वैल्यू 60, 64 minus this is 2/2 plus under root of a minus means a is nothing but 8 minus 2/4. So this is coming as √5 plus √3. ये मेरे पास इसका आंसर निकालने का रेडीमेड डायरेक्ट फॉर्मूला. लेकिन यही चीज को आपको ये भी ख्याल रखना है कि इफ यू आर राइटिंग अंडर रूट ऑफ a minus root b, उस समय ऑब्वियसली a greater than root b की बात हो रही है. दिस विल बी अंडर रूट ऑफ a plus अंडर रूट ऑफ this by 2 minus of under root of a minus under root of a square minus b by 2. दोनों फॉर्मूला आपको एकदम ख्याल रखना है, बहुत सारे जगह पर आपको यूज हो सकता है. नोट डाउन प्लीज.
Go for the third one. See. Okay. सर थर्ड का आंसर 98 है. Yes, beta. Very good. Third is, first is x conjugate multiplication, root 3 plus root 2 the whole square, y is equals to root 3 minus root 2 the whole square. Again, we are using the multiplication of the conjugate, right? So x is nothing but 5 plus 2 root 6, a square plus b square plus 2ab. Similarly, y is a square plus b square minus 2b6, right? So x plus y is equal to 10. And in this, you can say कि x into y is equal to 1 only. And x square plus y square is nothing but x plus y whole square minus 2xy. So 10 square, 100 minus 2 will be 98. Very good. Right? सर सेकंड का फाइनल आंसर 0 आया ना? नहीं 8. Second का 8 था ना बेटा? x minus 1 by x 2 आया था ना? अच्छा सॉरी क्यूब करना भूल गई. Now, third, the fourth one. See, the fourth one. Again, fourth is very simple, right? Direct ही जाने होंगे. In the fourth question, what we can do is transferring this under root there only. So we are getting under root of x minus under root of 1 minus x is equal to 1 minus under root x, right? Squaring both sides. Squaring both sides, we are getting x minus under root of 1 minus x is equal to 1 plus x minus 2 root x, right? X cancel out. Right? So again, with minus sign, we are getting under root of 1 minus x is equals to 1 minus 2 root x minus 1 plus this thing. Or we can write 1 plus under root of 1 minus x is equal to 2 root x. Again, squaring both sides, 1 plus 1 minus x plus 2 under root 1 minus x is equal to 4x. Transferring this, right? Or what we can do while solving this, we will go with the easiest one, right? Squaring both sides there itself. So I'm getting 1 plus 4x minus 4 root x. 1 will be cancelled out. This will be 5x is equal to 4 root x. वो स्टेप से unnecessary मेरे को एक बार और स्क्वायर करने पड़ जाते हैं, but here we can get root x is equal to 4 by 5. So x is equal to 16 by 25 something. Okay. Right? The fifth one, the best question was the fifth one. कितने लोगों का हो गया? मेरे ख्याल से मेरे को 3 लोगों के तो आंसर्स आए हैं और सॉल्यूशन आए हैं. वेरी गुड बेटा, हाँ बहुत अच्छे. फिफ्थ वन. सर हम लोग पहले x को सॉल्व नहीं कर सकते? क्या बेटा फिर से बोले प्लीज. सर फिफ्थ वाले में पहले x को सिंपलीफाई करके. x को सिंपलीफाई कैसे कर लेगा? सर्ट्स है. 3 to the power 1 by 3, 3 to the power 1 by 3 इर्रेशनल नंबर होता है, और इर्रेशनल नंबर कभी भी सॉल्व होके कोई फिक्स नंबर नहीं देगा, तो यू कांट सॉल्व दिस. सी, ध्यान से देखना सभी लोग ना, क्यों ये क्वेश्चन दिया और क्यों आप लोगों को सीक्वेंस आपको पता चलेगा जो अभी तक पढ़ाया है उसके सीक्वेंस किस तरीके से थे. ध्यान से एवरीवन. I'm writing this as 3 to the power 1 by 3, 3 to the power 2 by 3 plus 3 minus x is equal to 0.
I'm transferring this x to right, and now I'm writing this as something in this form, right? We know that this is a, b and c. If a plus, बहुत तरीके से solve हो सकते हैं. This is one of the method. If a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. So if I'll multiply this and this, so this will give the power 1 by 3 plus 2 by 3 is 1 only into 3 minus x. Right? Is it okay, everyone? Right? While solving this, this is 3, this is 9. We know that a minus beta whole square, and this is 9 into this. So while solving this, I guess you'll get this x cube minus 9x square plus 27x multiplying with the minus sign minus 27 is equals to 12 plus 9x minus 27, right? Or if we'll rewrite this, we are getting x cube minus 9x square plus 18x minus 1 is equal to 0. So this is nothing but equals to 0. We are using the same formula, right? If a plus b plus c is equal to 0, जो last class में किया था, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. सर्ट्स और ये दोनों को एक साथ में इन्वॉल्व करना was the क्वेश्चन की जो like you can say कि जो क्वेश्चन की डिमांड थी, the demand was कि how to relate both the things, right? Right, everyone? Note it down. Yes. Sir, it will be 12. Yes, beta. Sir, x cube minus 9x square plus 18x minus 12. Minus 12. This is minus 12 is equal to 0. सर हाँ. सर सेकंड स्टेप में आरएचएस पे क्या किया वो नहीं समझा. फॉर्मूला लगाया बेटा. If a plus b plus c is equal to 0, then एक दूसरा कलर ले लेता हूँ. a cube a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. A is 3, a is 3 to the power 1 by 3. A cube किया तो 3 आ गया. B cube is 3 to the power 2 by 3. Cube किया तो 9 आ गया, right? C cube किया तो 3 minus x का power 3 आ गया. And then 3a is 3 to the power 1 by 3. B is 3 to the power 2 by 3. And C is this number only, right? हाँ सर, तो a into b क्या होगा? A into b means a is 3 to the power 1 by 3 and 3 to the power 2 by 3. In the surds आज ही हम लोगों ने देखा अगर दोनों बेस सेम है तो क्या होंगे पावर 1 by 3 plus 2 by 3 ऐड हो जाएगा. So 3 to the power 3 by 3 is 1, so 3 only. Okay sir. So that's the reason I have written that as 3. किसी का दो डिवाइस ऑन है, प्लीज ऑफ कर दो एक डिवाइस को या म्यूट कर दो. सर यस बेटा. ये दूसरे मेथड से हो सकता है क्या? एकदम हो सकता है बेटा, वो भी दिखाऊं? सर 3 को x की जगह ले जाके फिर क्यूबिंग बोथ साइड्स और फिर इक्वेशन आ जाए. एक ही बात है बेटा, अभी दिखा देता हूँ उसे भी. हाँ ध्यान से देखना. x minus 3 is equal to 3 to the power 1 by 3, 3 to the power 2 by 3. Cubing both sides. X minus 3 whole cube, 3 to the power 1 by 3, 3 to the power 2 by 3 ka whole cube, right? You have to be careful, right? While solving this. This you are getting x cube minus 9x square plus 27x minus 27 is equals to this is 3.
a cube plus b cube plus 3 ab a into b. This a into b is nothing but x minus 3 only. बस यही ट्रिक था इसमें. जो a b into a plus b है, तो ये वाली क्वांटिटी जो फिर से आ रही है उसे x minus 3 लिख देना है बस. So you will get the same answer. Same thing means x cube minus 9x square plus 27x minus 27 is equal to 12 plus वही चीज आ गया देखो 3 into 3 9 x minus 3. Okay. Okay, everyone. Get this point? Now. Next, मैं फिर से क्वेश्चन दे रहा हूं. This time you have to be careful. First, a to the power 1 by 3, b to the power 1 by 3, c to the power 1 by 3 is equal to 0. Then prove that a plus b plus c whole cube is equal to 27 abc. Right? Second, under root of 15 minus x root 14 is equal to under root 8 minus under root 7. Find x. Third, fourth, square find square roots of 8 plus 2 root 15, root 50 plus root 48, and fifth, fourth root. सर वो 50 रूट 4 है या प्लस है? Root 50 plus root 48. Fourth root of 124 minus 32 root 15. 5 question. Maximum 12 minutes. सर इन Right. Coming to the third one. Right. In the third question, just cross multiply the number that's given. So this will be 9 plus 2x minus under root of, assuming both the numbers are positive, 2x, 9 plus 2x is equal to 5. So we're getting 2x plus 4 is equal to under root of 2x, 9 plus 2x. Right? Squaring both sides. 2 common out, or 2x plus 4 the whole square is equals to 2x plus 9 only. Right, we are getting 4x square plus 16 plus 16x is equal to 4x square plus 18x. Right, 4x square will be cancel out, right? 2x is equal to 16 to x is equal to 8 only. Very good. Simple question. सर वो 2x plus 9 है ना?
हाँ बेटा 9 इंटू 2x हुआ ना तो 18x हो गया ना। सर हाँ, वो आपने- पाई कहाँ गया? 16 लिखा था। राइट 5 को उधर ट्रांसफर किया तो 9 माइनस 5 4 हो गया। कैलकुलेशन अपना अपना चेक करो बेटा। राइट द थर्ड वन। Yes, sir. फोर्थ attentive with the calculation ना, simple है but initial stage है, so you will get something. Now 8 plus, so 8 plus 2 अगर मैं अंडर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो दिस विल बी अंडर रूट 16। इसके अंडर रूट निकालने हैं, so a is equal to 8 and b is equal to 60, right? तो अभी जस्ट पहले ही किया था ना, 8 plus a square minus b square जो 2 Root 5 plus by root 2 2. plus under root of 8 minus 2 by 2 आया था तो root 5 plus root 3, right? ये डायरेक्ट में हमारे पास जा सकता है या डायरेक्टली भी कर सकते, राइट? बट अनफॉर्चुनेटली जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये इस फॉर्म में नहीं है, रूट ए प्लस रूट बी के फॉर्म में नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से मैं देखूं वो भी उस फॉर्म में आ सकता है। कैसे दिखाता हूं। तो यही चीजें हैं जो थोड़ा सा हम लोगों को देखना है कि वो फॉर्मूला ही मेरा कैसे यूज हो रहा है। कोई नई चीज करने से बेटर है कि जितना जानते हैं वो कैसे अच्छे से अप्लाई हो पाएगा। रूट 2 अगर मैंने कॉमन लिया तो दिस इज कमिंग एज रूट 25 प्लस रूट 24, राइट? रूट 25 इज नथिंग बट 5 प्लस अंडर रूट 24। ए की वैल्यू 5 आ गई, बी की वैल्यू 24 आ गई, राइट? 5 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी बाई 2 का अंडर रूट, प्लस बीच में प्लस है तो प्लस साइन जाएगा, 5 माइनस 1 बाई 2 6 रूट 3, एक रूट 2 बाहर है ये याद रखना, राइट? तो 6 3 रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू रूट 2, तो दिस विल बी 2 प्लस रूट 6, Plus root 6. Yes, sir. राइट? सिंपल फॉर्म है बट थोड़े से केयरफुल होने की जरूरत है और इसके बहुत सारे वेराइटी आपको मिलेंगे, राइट? बहुत सारे वेराइटी। राइट, नेक्स्ट द लास्ट वन। ये अब उसी क्वेश्चन को ध्यान दो कैसे टफ बनाया जाता है इसे समझना, राइट? अभी तक देखा क्या हमने कि स्क्वायर रूट ऑफ ना, सडनली वो दे दिया फोर्थ रूट ऑफ। कोई इतने इसकी बात नहीं है, यू हैव नॉट टू डायरेक्टली जंप इनटू फोर्थ रूट, राइट? पहले स्क्वायर रूट निकालते हैं, फिर जो आ जाता है उसके फिर से स्क्वायर रूट निकालते हैं। 2 बार मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 100% वही क्वेश्चन है। मतलब एक ही क्वेश्चन को उसने 2 बार दे दिया, मैं ये बोल सकता हूँ। मैं क्यों सिंपली उस पर मैं फंसूं कि वो फोर्थ रूट बोल रहा है, मैं ये सोचूं कि ये फोर्थ रूट नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है स्क्वायर रूट 2 बार निकालने। तो 1 टाइम दिस इज 124 माइनस 32 को मैं अंदर ले जाऊं, या ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 16 56 इंटू 15, तो 3840 समथिंग लाइक दिस, राइट? एंड 3840 मेरे को दिखाई जो दे रहा है ये 60 एंड 64 का मल्टीप्लीकेशन है। सो दिस इज, ये थोड़ा आसान हो गया। 64 प्लस 60 आप ए बी से कर लें या यहाँ से कर लें, एक ही बात है। 2 इंटू ये करना मेरे को ये पसंद आता है, आपको फॉर्मूला दिया हूँ, बट अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं इसे पसंद करता हूँ कि आप डायरेक्टली इसे लिखें और यहाँ से सोच पाए। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो दिस विल बी 8 माइनस रूट 60 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, वी आर गेटिंग 8 माइनस रूट 60, राइट? 64 का अंडर रूट विल बी दिस। अब एक बार फिर इसके अंडर रूट निकालने, राइट? तो 8 माइनस रूट 64 मतलब 64 माइनस रूट 60 का अंडर रूट, तो a इज इक्वल टू 8, राइट? a इज इक्वल टू मेरे पास 8 आ गया एंड b की वैल्यू मेरे पास गिवन है रूट 60, राइट? तो दिस विल बी
8 प्लस 4 का अंडर रूट इज 2 by 2 का अंडर रूट माइनस अंडर रूट ऑफ 8 minus 2 by 2. तो दिस इज रूट 5 माइनस रूट 3. रूट 5 माइनस रूट 3 का ये जो गिवन है वो है रूट 5 माइनस रूट 3 का पावर 4 और इसका 1/4 हमने निकाला है तो दिस इज कमिंग रूट 5 माइनस 3. बहुत सारी वेराइटीज हो सकते हैं तो लाइक यू हैव टू बी थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है. So can you explain again? नहीं कौन सा बेटा? समझा. which step? So second step, sir. This one? Yes, sir. See, this is if I'm writing this as a square, this as b square minus 2ab, right? So a square plus b square minus 2ab. What is the formula for that? A minus Yes. b the whole square under root से हटा दिया मैंने तो I'm getting a minus b. Yes, sir. सर वो 64 माइनस रूट 60 द होल रूट का क्या था आंसर? 64 minus root 60 तो यही आ गया बेटा. इसका रूट का आया रूट 5 minus root 3. हाँ ओके ओके ओके. Okay. It's in fact this is root 64, so this is coming as 8. Okay everyone. थोड़ा टाइम हो गया है बट मेरा मन नहीं भरा यार. 1-2 क्वेश्चन और है मैं चाह रहा हूँ करवाना. चलो 2 क्वेश्चन तो करवाता हूँ ना. फाइन. म्यूट करके रखना प्लीज अपने आप को सभी लोग. ये पैटर्न चलते हैं इस तरीके से, राइट. इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट. ये एक पैटर्न चलता है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है. यू हैव टू बी केयरफुली सी पैटर्न को कैसे वर्क करने हैं. x की वैल्यू ये गिवन है तो यू हैव टू प्रूव दिस. ये bx² माइनस ax प्लस b इज इक्वल टू 0. पूरा असाइनमेंट मैंने आपको भेजा हुआ है. यू हैव टू कंप्लीट योर असाइनमेंट. नेक्स्ट क्लास में मैं उसे डिस्कस करूंगा एंड फिर उससे थोड़े से ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलेंगे. पहले ये 2 क्वेश्चन 5 मिनट्स यू हैव. x is equals to under root of 1 plus under root of 2x, right? So squaring both sides or just transfer this under root, then this will be right. The value under root 2 under root 2 under root 2 is going right. So the complete under root is in the bracket. So this is coming as 1 plus 2x, right? X square is equals to 1 plus under root of 2x. Right? So x square minus 1 is equal to under root of 2x. Right? X square minus 4 का whole square is equal to 2x. Right? अभी तक के लिए आपको इतना ही जानना होगा कि यहाँ तक x के लिए एक पॉलिनोमियल्स बन के आ जाएगा. सॉल्व करने का इसका तरीका जो भी होगा वो आगे जाके पढ़ोगे तब पता चलेगा.
right? Polynomial of the equation. And the second one, ये जो हम लोगों ने आज मैं थोड़ा सा ये रहा, बट कंपोनेंडो डिविडेंडो जो बोला था उसे यूज करने के लिए ये एक बहुत ही प्यारा जगह होता है, राइट? व्हाट इज दैट? होता क्या है? कंपोनेंडो डिविडेंडो भी यूज ना करूं, इक्वेशन किस तरह से वर्क हो सकता है, ध्यान देना. This we can write as this is x by 1, right? So I guess everyone knows that अगर मैं इसे x plus 1 upon x minus 1 लिखूं, अगर ये a by b है तो ये भी a plus b upon a minus b होगा. तो a plus b is twice of under root of a plus 2b and a minus b is twice of under root of a minus 2b, right? I'm saying कि a by b is equal to c by d है, तो we have formula. अगर मैंने लेफ्ट साइड में a plus b by a minus b किया, तो राइट साइड में भी सेम पैटर्न में c plus d upon c minus d, तो रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक फॉर्मूला, राइट? देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, x plus 1 का होल स्क्वायर अपॉन x minus 1 का होल स्क्वायर, a plus 2b upon a minus 2b. Again we can apply this componendo dividendo, right? So again x plus 1 का whole square plus x minus 1 का whole square upon x plus 1 का whole square, x minus 1 का whole square. So this plus will be 2a upon 4b. 2 cancel out, solve करके लिख लो चाहिए जो वही आपका आंसर आ जाएगा, right? Everyone okay? सर एक बार सेकंड स्टेप से वापस बताओ. ये वाला, ये स्टेप, हाँ सर. ये स्टेप में दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने, तो स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर आ गया. नहीं सर, सर इसके ऊपर का. ये वाले में मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, दिस इज नोन एज कंपोनेंडो डिविडेंडो. अगर ऐसा कुछ नंबर दिया है a by b is equal to c by d, तो you can write a plus b by a minus b is equal to c plus d by c minus d. सर एक बार पिछले वाले क्वेश्चन एक बार पेज बैक करना ना, वो कॉपी नहीं किया मैंने. इसका शायद यही था, मैंने रब कर दिया बेटा. रिकॉर्डिंग में you can get that ना. ठीक है सर. Done everyone? नहीं सर. चलो. You have to complete your homework, right? होमवर्क आपको I have sent, हाँ, WhatsApp में मैंने भेजा हुआ है. नेक्स्ट क्लास में we will discuss the homework first. Okay, चलो, bye bye.